السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ظفر اقبال، اور آج ہم جس ویڈیو پر کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان مائنورٹیز پرابلم۔ تو پاکستان میں بہت سی مائنورٹیز کو پرابلم ہے جو ہم دیکھے جاتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مزید۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ نہ بولنے کی آزادی ہے، ایک گھٹن سی ماحول ہے کہ نوجوان محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ کمنٹ سنائی پڑتے ہیں کہ اتنا ہی تم لوگوں کو پاکستان سے نفرت ہے تو جا کے انڈیا بس جاؤ۔ 1947 سے لے کر ابھی تک ہر دور میں ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ آپ لوگ غدار ہیں، آپ لوگ وفادار نہیں ہیں، اور جو ہم سے تھوڑا سا اچھا سلوک رکھتے بھی ہیں یا کم از کم ہمارے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر جسے کہوں گا رکھتے بھی ہیں، وہ بھی اب ڈر گئے ہیں بیسکلی۔ وہ بھی ہمیں سب کے سامنے اکنالج نہیں کریں گے۔ پاکستان 14 اگست کو اپنی آزادی کی سالگرہ مناتا ہے، لیکن الگ الگ لوگوں کے لیے اس کے معنی الگ الگ ہیں۔ پاکستانی سماج میں کچھ طبقے ہیں جو الگ بھاشا بولتے ہیں یا ان کی آستھا الگ ہے۔ کیا ان کے ساتھ بھی سمان ویوہار ہوتا ہے؟ بھارت کے پڑوسی دیش کی 75ویں سالگرہ پر BBC نے وہاں کے کچھ الپ سنکھیک سمودایوں سے بات چیت کی۔ ہم نے ان سے جاننا چاہا کہ کیا وہ خود کو پاکستان کا حصہ مانتے ہیں اور اپنے سمودائے کے لیے اگلے 25 سال میں کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں۔ کوئی بھی آ کے ہمارے مندروں کی تذلیل کر کے جائے، کوئی سیکیورٹی نہیں۔ کوئی بھی آ کے ہماری بچیوں کو 12 13 سال کی بچیوں کو کوئی بھی ہاتھ سے پکڑ کے کڈنیپ کر کے اس کی راتوں رات شادی کروا کے پھر ہمیں دستاویز دیے جاتے ہیں کہ آپ کی بچی 13 سال کی نہیں، آپ کی بچی تو پوری 18 سال کی ہے، اور 40 سال کی 50 سال کے بابا سے اس کو پیار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھاگ کے نکلی ہے اور اس نے اسلام قبول کر کے شادی کر لی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ 1947 سے لے کر ابھی تک ہم تو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کیسے، لیکن ابھی تک ریاست نے، پاکستان نے اس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ نہیں رکھا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ہر دور میں 1947 سے لے کر ابھی تک ہر دور میں ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ آپ لوگ غدار ہیں، آپ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ اب ایک احمدی جو اسلام آباد لاہور میں ہوتا ہے اس کا بالکل ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا۔ ایک جو روا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی ہے وہاں جو پلا بڑا ہے اس کا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ لیکن میں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس جو کیا تھا کہ شاید ہم سے نہ صرف یہ کہ ہم علیحدہ ہیں بلکہ ہم سے ایک نفرت کا ایک سلوک کیا جاتا ہے، وہ ہمارے 28 مئی 2010 میں جب ہماری بیت الذکر کی گڑی شاہوں میں اور مال ٹاؤن میں حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد جو میں نے ہمارے عام شہریوں کا رویہ دیکھا لاہور کے اندر، اس نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی کہ جیسے نہ صرف یہ کہ میں نے لوگوں کو باقاعدہ جشن مناتے ہوئے دیکھا، اس وقت مجھے احساس ہوا، اور میں نے ٹی وی پہ جس طرح کوریج دیکھی، سیاستدانوں کے بیانات دیکھے، بیوروکریسی کی میں نے دیکھا، اس وقت مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جیسے ہم لوگ نہ صرف یہ کہ سوتیلے نہیں ہیں یا بالکل الگ نہیں ہیں بلکہ ہم سے ایک نفرت کی جاتی ہے اور ہمارے مرنے پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اب تک ہم بلوچ یا کہ بلوچستان کے طلباء، نوجوان، ہمیں اس طرح کی کوئی چیز محسوس نہیں کرائی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ واقعی ہم ایک آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں۔ شروع میں مجھے لگتا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، ملک کے دیگر حصوں میں بھی شاید ایسے ہی چیک پوسٹیں ہوتی ہوں گی، وہاں پہ نوجوانوں کو بائک سے اتار کے ان کے لمبے بال جو بلوچی ثقافت کی ایک نشانی ہوتی ہے ان کو کاٹتے ہوں گے، یا بڑے گھیر والے شلواروں کو کاٹتے ہوں گے۔ لیکن جب میں پہلی بار بچپن میں لاہور گیا اور کوئی فورٹ منرو سے نکلنے کے بعد کوئی 700-800 کلومیٹر کا سفر جب میں نے لاہور تک طے کیا، اور مجھے جب ایک بھی چیک پوسٹ وہاں پہ غیر ضروری نظر نہیں آیا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے جیسا میں سوچ رہا تھا۔ پنجاب میں یا اور بلوچستان کے شہریوں میں فرق ہے، اور ریاست کا جو برتاؤ ہے ان دونوں خطے کے لوگوں سے وہ مختلف ہیں۔ آپ کو پہلی بار کب محسوس ہوا کہ آپ پاکستان کے دوسرے سمودایوں سے الگ ہیں؟ جیسے ہم ایسے کر کے ملتے ہیں، سارے سندھی ایسے ملتے ہیں، یہ کوئی ہندوؤں کی سمبل نہیں ہے، یہ پورے سندھ کی سمبل ہے۔ یہ جیسے ساڑی ہے، ہماری اچھی جو پری پارٹیشن سے جو لیڈیز تھیں وہ ساڑی پہنتی تھی، اب آپ نے وہ مخصوص کر لیا کہ ساڑی ہندو پہنتے، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اس خطے کا کلچر ہے جس کے ماننے والے صرف ہندو نہیں تھے،
हर जगह पे आप सिंधी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो या साइंस की बुक हो, उसके नाम पे आप दूसरों को मज़हब की इंतहा पसंदी तो ना सिखाएं। ये आपकी जनरेशन और नस्लों को भी तबाह करने की वो है। जब एक मुस्लिम बच्चा ये पढ़ता है कि हिंदू के टेम्पल को फतेह करना एक फ़तेह है, तो आप ये सोचें तो किस तरह का माइंड सेट आप बना रहे हैं। अगर पंजाब के लोग गालियाँ दे इदारे को, फ़ौज को, आप भी आपने देखा होगा हर रोज़ ट्रेन चलाते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर ले तो ये लोग हमें जेलों में डालते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आप लोग बतौर पाकिस्तान के शहरी हमारे साथ बराबर नहीं है। पहले हमें लगता था शायद कोई ख़ास तबका है, ख़ास उलमा है, ख़ास मजहबी मदरसा के तालिब इल्म है, ख़ास तबका है जो हमारे ख़िलाफ़ है। अब ये लगता है कि हर तबके के लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, और जो हमसे थोड़ा सा अच्छा सलूक रखते भी हैं या कम अज़ कम हमारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहूँगा रखते भी हैं, वो भी अब डर गए हैं। बेसिकली वो भी हमें सबके सामने एक्नॉलेज नहीं करेंगे। अब भी काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स आपके जो है ना पढ़ा लिखा तबका लापता है, मिसिंग है, उसके लिए हम रोडों पे निकलते हैं, उसके लिए हम एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना किसी की सुनवाई नहीं होती। आने वाले 25 साल में आप अपने समुदाय के लिए कैसा पाकिस्तान चाहते हैं? हम एक ऐसा बलूचिस्तान या एक ऐसा सोसाइटी, जमहूरी सोसाइटी देखना चाहते हैं वहाँ पर सवाल उठाने वालों को उठाया नहीं जाए, बल्कि सवाल उठाने वालों के जो सवालात हैं, उनके ख़दशात हैं, उनका रिस्पॉन्स दिया जाए पॉजिटिवली, और उन मसाइल को एड्रेस करने वाले जो होते हैं उनके मसाइल को हल किया जाए। इस तरह के बेतहाशा अहमदियों ने अपनी इस मुल्क की खिदमत के लिए अपना वक्त दिया है, तो मेरी ये ख्वाहिश है और दुआ भी है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आगे जाके हालात भी अच्छे और तमाम अक़लियतों को बशमूल अहमदियों के भी हालात बेहतर हों। हम तो इस तरह पाकिस्तान चाहते हैं आइंदा 25 साल में, पहले भी इससे भी चाहते थे 25 साल भी, और आइंदा के लिए भी इस तरह पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर हर शहर के लोग के हुकूक एक जैसे हो, कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लाहौर के लोगों का, पेशावर के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज़ हमें जोड़ते हैं आपस में, और वो है आईन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान आइन पर अमल दरामद करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द मज़हब, हर नस्ल के लोग को बराबर अपॉर्चुनिटी हो। अब मसला ये हो गया है कि ये जो मुल्क जो दो मज़हब के नाम पे बना था, तो उन्होंने हमें तो माइनॉरिटी का शेल्टर देके आपने एक साइड में धकेल दिया है। लेकिन कोई इस रियासत से पूछे कि क्या आपके यहाँ मेजॉरिटी भी सेफ है? हाँ जी गाइस, जैसा कि हम देख रहे थे, प्रॉब्लम्स ज़ाहिर बात है, लेकिन जो अगर स्टार्ट में हम बात करें तो जिस तरह एक हमारा आइन है या हमारा एक जिस तरह हमारे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया था कि आप इधर पाकिस्तान में आज़ाद हैं, अपनी इबादत गाहों में आप खुल के जो है ना वो इबादत कर सकते हैं, आप पूरे पाकिस्तान में आज़ाद हैं, अपने बिज़नेस करने में, हर तरह के काम करने में जो है ना वो आप आज़ाद हैं, बिल्कुल है। तो लेकिन प्रॉब्लम्स इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह आप देख लें कि सिंध में जो है ना वो आए दिन कोई इस तरह के जो है ना वो वाक़यात सामने आ रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई जब कोई हाईलाइट हो जाता है उस वक्त कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो मुकम्मल खामोशी हो जाती है। लेकिन अब जो है ना इन्होंने कुछ जो अब के वज़ीर ख़ारजा सिंध के रहने वाले हैं, उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि आप जो है ना एक बाकायदा एक बिल पास करें, एक अमेंडमेंट, एक कानून पास करें जिसमें कोई भी जो है ना वो ज़बरदस्ती अपना जो है ना वो रिलीजन चेंज ना करवाए और ना ही ज़बरदस्ती शादी करे, ना इस तरह का कोई सीन करे। तो बहुत सारे वाक़यात कभी सामने आ जाते हैं, लेकिन उससे दिल आज़ारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और वही हाईलाइट होते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें, कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी और होती हैं, वो जो है ना वो हमेशा, क्योंकि एक मीडिया है ना, आप BBC की न्यूज़ आपने ली है या हमने ली है, तो वो एक मीडिया, तो उसमें मीडिया का काम भी यही है कि उसने वो चीज़ हाईलाइट करनी है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो सही चल रही है उसको उसने कोशिश करनी है कि ना चल रहा। अब ये आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है मिनॉरिटीज़ यहाँ पे कम भी हुई हैं, जिस तरह 23% से स्टार्ट में जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद आप 1-2% पे रह गई हैं, ये भी है। और इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं कि ये क्यों कम हुए हैं,
ये बेसिक हमें जो है ना इन चीज़ों का इसी तरह पता चलना है कि हम लोगों के पास जाएँ, उनसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ये इस तरह का सीन हुआ है। बिल्कुल जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इधर कोई पंजाबी, सिंधी या बलूची नहीं, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी हैं, तो ये एक फ़िरके बने हुए हैं आपस में, और कुछ हैं जो ठेकेदार बने होते हैं कि जो आप बलूचिस्तान की मिसाल देख लें, इधर जो उनके बड़े बड़े हैं, इधर इस्लामाबाद बैठे हैं कोठियाँ बनाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, जो भी फंडिंग या जो भी उनका हिस्सा होता है गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, वो अपना भाई एक लेते हैं, और इधर इस्लामाबाद में अपना बैरिया टाउन में कुछ प्लाट ले, कोठी वगैरह बनाई और ऐसे ज़िंदगी गुजारी, और फिर उधर जाकर रो धो दिया कि हमें कुछ नहीं दे रहा है, तो बलोचियों पर जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान टूट रहा है, इस पर रहम करो, ये एक एजेंडा फिर चला देते हैं। बिल्कुल, आप एक बंदा जो आप देख रहे थे ना, जो शो नहीं हो रहा था, वो जो अंधेरे में बैठा हुआ था, वो उसका तल्लक जो है ना वो कादियानी जमात से है, और यहाँ पे इनको जो है ना वो एक जो है ना वो अदर मुस्लिम जो है ना वो अदर रिलीजन जो है ना वो समझे जाते हैं, या इनको जो है ना ये कहते हैं कि ये मज़हब से उठ है, हमारे इस्लाम से उठ है, लेकिन उसकी बेहद रीज़न्स हैं, और इस चीज़ को जो है ना वो लोग हम मानते भी हैं कि ये जो भी इनका सीन, लेकिन जहाँ पे अगर इनकी बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ के ऊपर, लोग इनको जो है ना वो यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते कि ये इधर रहें, लेकिन फिर भी इनका जो है ना वो एक हमारे ज़िले के साथ एक और ज़िला है चिन्योट, वहाँ पे एक इनका जो है ना वो बाकायदा फुली जो है ना ये एक इनको एक सिटी मिला हुआ है, पूरा एक कस्बा आप कह लें कि वो है जहाँ पे ये रहते हैं, और इनको भी जो है ना वो बाकायदा सिक्योरिटी दी हुई है, और हर तरह से इनको जो है ना वो गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जब साइड पे, क्योंकि इनका पता हमारे जैसे ही है, इनकी कोई अलग शक्ल सूरत नहीं होती, ये ना हम समझे कि इनकी कोई अलग, लेकिन ये हमारे तरह के इंसान हैं, हम हमारे अंदर से ही हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है ना वो कोशिश करते हैं कि फुल सिक्योर करें, क्योंकि लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा नफ़रत रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, जितनी बाकी मिनोरिटीज़ के हवाले से नहीं होती जितनी इनके, लेकिन ये भी इनको जो है ना आप इन्होंने मिनोरिटीज़ का दर्जा दिया हुआ है, तो इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पाकिस्तान में रहने के लिए। तो इसके असल में मसला ये होता है कि इसके ऊपर जो है ना वो पॉलिटिशियन भी बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना वो तगोदो करते हैं, और पॉलिटिकल इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एंड पे हम यही कहते हैं कि अगर इनके मसले मसाइल हैं तो गवर्नमेंट को जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकालने चाहिए, और जो भी छोटे मोटे रह गए ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो इतने हाईलाइट नहीं होते, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन ये है कि मामला चलते रहते हैं इस तरह के। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।